Hello everyone, welcome back to the video series for class 10th Information Technology, and in this video we are going to discuss about the part A of our syllabus, which is all about employability skills. So in this video we are going to discuss various skills like communication skill, writing skill, stretch management skill, and green skills, entrepreneurship skill. So all these skills we are going to cover in this video. All these skills are related to employability skill. So already we have completed the part B, which was subject related skill, and this part A is employability skill. So let us start today's topic. So if we want to know that what is skill based subject learning, then we can say that it is about planning, implementing and analyzing skills gained through knowledge based learning. सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग किसी सब्जेक्ट के कंटेंट के ऊपर बेस्ड होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से को समझने के लिए हमें कौन सी स्किल की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करते हैं तो हमारा इंटरेक्शन कैसा हो, हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो, हमारा स्किल मैनेजमेंट कैसा हो, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं स्किल्स के बारे में। So first thing which we are going to discuss is all about communication skill. When we are talking about communication, it means that communication is exchange of information by signals. Signals like we may use the technique of speaking, writing or using some other medium and means is called communication. Okay. So here what happens that we are sending some information and receiver is receiving some information. So basically it is a cycle, it is a process by which a message is sent by one individual and it passes through a chain of recipients. तो कम्युनिकेशन साइकिल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैसेज किसी इंडिविजुअल से भेजा जाता है और वो एक रिसिपिएंट्स के चेन से होते हुए गुजरता है. So the timing and effectiveness of communication cycle is based on how long it takes for feedback to be received by the initial sender. तो अगर हम बात करें कि एक कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है या फिर ये कितना इफेक्टिव है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसने इस मैसेज को सेंड किया था उसके पास रिसीवर की तरफ से फीडबैक कितनी देर में पहुंचता है. इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ टर्म्स की. जैसे अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन साइकिल्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, एक मैसेज जो एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू हम अपना मैसेज भेजते हैं, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक. रिस्पॉन्स फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिसीवर्स की तरफ से मैसेज होता है सेंडर के लिए. ओके. So basically we can say that there are four main categories of communication styles, including verbal, non-verbal, written and visual. तो ये चार कैटेगरीज मेन होती हैं. अगर हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की तो यहाँ पे हम we are using the language to transfer or share information through speaking or sign language. यहाँ पे हम एक particularly language use करते हैं. So it is the most common types often used during presentations, video conference, phone calls, meetings and one-to-one conversation. So the advantage is that it is very important because it is efficient. It can be helpful to support verbal communication with both verbal and non-verbal and written communication. And the second category is non-verbal, where we are using the body language, gestures and facial expression to convey information to others. तो ये तब हेल्पफुल होता है जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं उसके थॉट्स और उसके फीलिंग्स के बेसिस पे. ओके. Then we are having visual communication also. Visual communication means here it is an act of using photographs, videos, art, drawings, sketches, charts and graphs to convey information. So visual communications are mostly used during the presentations to provide helpful context alongside with written और वर्बल कम्युनिकेशन. तो नॉर्मली अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो हम विजुअल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, हम चार्ट्स यूज़ करते हैं, हम वीडियो यूज़ करते हैं, हम पिक्चर्स यूज़ करते हैं अपनी बात समझाने के लिए.
And the next last one is written communication. So it is the act of writing, typing or printing symbols like letters and numbers to convey information. It is helpful because it provides a record of information for reference. अब ये राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक एडवांटेज है कि ये हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड इसका रह जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी को मेल भेज रहे हैं, किसी को पैम्पलेट सेंड कर रहे हैं, किसी को बुक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ब्लॉग्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर written communication. Okay, so next we will discuss is what are the different types of communication. So once again we can divide the communication बेस्ड ऑन टू डिफरेंट क्राइटेरियाज। अगर हम कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे इनको डिवाइड करना चाहेंगे तो हमारे पास नॉन वर्बल और वर्बल हो जाएगा। नाउ वर्बल कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू ओरल एंड रिटन, एंड ओरल कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू फेस टू फेस एंड डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके, अगर हम आमने सामने होके बात करें या डिस्टेंस में हो, हम फ़ोन पे बात करें, तो ये दो चीज़ें फिर से फर्दर कैटेगराइज हो जाएंगी ओरल कम्युनिकेशन के लिए। और अगर हम बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस से बात करें तो एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी और दूसरा हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। So coming to the first one, once again that is verbal communication. Already we have discussed that what is verbal communication. दोबारा से अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो we can say that it includes sounds, words, language and speech. Speaking is one of the most effective and commonly used way of communicating. जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन मीडियम है, कम्युनिकेशन टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने इमोशंस अपने वर्ड्स में डालते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की तो यू कैन सी दैट इट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वन टू वन आप देख सकते हो। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, this one is the interpersonal communication. Written communication, if you are sending messages, sending letters, sending mails, sending blogs, then it will be your written communication. Small group communication, it means if you are uh, arranging some meeting with smaller people, then you will have small group communication. Public communication, if you are addressing a gathering, then it will be known as public communication. So these four are types of verbal communication. Next, there are some advantages and some disadvantages of verbal communication also. So when we are talking about advantages, तो अगर हम advantages की बात करते हैं तो the very first advantage is it saves time, क्योंकि हम फटाफट से अपनी बात कह के दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। So it helps us to quickly send intended message, thus saving the time. It saves money also. यहाँ पे पेपर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नेट की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे अपनी बात एक दूसरे से बोल सकते हैं। So first advantage was it saves time, it saves money, और साथ ही साथ हमें रिसीवर से फीडबैक भी मिल जाता है। तो तीसरा जो एडवांटेज है इट इज़ फीडबैक क्विकनेस। Okay, so the advantage of verbal communication is the fact that receiver can ask and clarify his doubt on the spot without any delay. अगर हम सामने से बात करके अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो रिसीवर तुरंत ही हमें अपना डाउट बता सकता है कि उसे हमारी बात समझ में आई या नहीं आई। So it is the most convenient method. Next advantage, it is the most convenient method. ये एक ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जो ग्लोबली सबसे आसानी से अडॉप्ट किया गया है और लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, ईज ऑफ प्रिपरेशन, इसमें कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो। लेट अस डिस्कस सम डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मीन्स देयर इज चांस ऑफ डिस्टोर्शन इन मीनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो समझाना चाहते हैं सामने वाला वो नहीं भी समझ पाता है। इट मे हैपन समटाइम्स। देन इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग मैसेजेस। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू कन्वे लॉन्ग मैसेजेस। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ी बात आप समझाना चाहो तो रिसीवर उसको सुनने से पहले ही थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। There may be chance of misunderstanding. Okay, so verbal communication is the most efficient way of communicating between two personal or groups.
It provides the means to handle the everyday task with ease and helps in getting a quick result as the feedback is quick and the message conveyed in verbal format is quick and direct to the point. But some disadvantages are also there. Now coming to the नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम एक्सप्रेशन के थ्रू अपना मैसेज सेंड करते हैं, अपने बॉडी जेस्चर्स के थ्रू करते हैं, पोस्चर्स के थ्रू करते हैं, अपने टच, आई कांटेक्ट, इन सब को यूज़ करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम शॉपिंग करके खुश हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी बॉडी जेस्चर्स जैसे हम अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय, पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन एक्सप्रेशन, स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी, मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर सैड। बॉडी लैंग्वेज भी हम यूज़ करते हैं, पोस्चर्स यूज़ करते हैं, इस तरह से कुछ बॉडी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। So here again coming back to the process of communication cycle and importance of feedback, जैसा कि आपने डिस्कस किया है कि जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल की, तो ये पूरा एक प्रोसेस है जब हमारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। So here one person is a sender who conveys a message to another person which is known as receiver. जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाता है और वो एक्नॉलेज करता है कि या तो बात उसे समझ में आ गई है या नहीं आई है, तो वो वापस उसको एक बदले में रिस्पॉन्स भी देता है जिसको हम फीडबैक कहते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन साइकिल। सो देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम अपने कम्युनिकेशन को अगर इफेक्टिव बनाना चाहेंगे तो उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, और वो प्रिंसिपल ये हैं कि वी मस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज, हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट एंड कंसाइज होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मीडियम होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और कर्टियस होना चाहिए। इनके बारे में हम डिटेल्स में आगे भी पढ़ेंगे, बट दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ कमिंग टू द फीडबैक, as I told you that feedback has very important role in this communication cycle. Feedback ही बताता है कि रिसीवर तक हमारी बात सही से पहुंची है या नहीं, या कितनी पहुंची है। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। ये वो रिएक्शन है जो रिसीवर की तरफ से हमें मिलता है। सो इट मे बी ऑफ टू टाइप, इट मे बी पॉजिटिव फीडबैक, इट मे बी नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक दोनों तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये हमें जानना है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि इट टेल्स बोथ द सेंडर एंड रिसीवर हाउ देयर मैसेजेस आर बीइंग इंटरप्रेटेड। ये दोनों ही सेंडर और रिसीवर को बताता है कि उनके मैसेज को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, तो ये वो फीडबैक होते हैं जो बताते हैं कि सेंडर की बात रिसीवर को समझ में आ रही है एंड सेंडर कैन कंटिन्यू हिज कम्युनिकेशन, जैसे वो बोल रहा था वो वैसे ही कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक की मतलब है कि सेंडर को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए ताकि रिसीवर उसकी बात को अच्छे से समझ सके। ओके, सो हियर आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप कह रहे हो आई नोटिस्ड यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज ऑल्सो शेयर द डिटेल्स, अगेन इट इज पॉजिटिव फीडबैक। बट if someone is telling you that you keep forgetting to smile at the hotel guest when you talk to them, it means this is a negative feedback. You take really long to reply to emails, are you always so busy, again it is a negative feedback. अब अगर आप कोई फीडबैक नहीं देते हो, ठीक है, आप सिंपली सुन रहे हो, आपका बदले में कोई रिएक्शन नहीं आता है, तो अगेन इट इज साइन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इट इज़ ऑल्सो फीडबैक इन इटसेल्फ विच इंडिकेट्स डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़। अगर आप कोई भी फीडबैक नहीं दे रहे हो, मतलब आप सेंडर की बातों से अग्री नहीं कर रहे हो। तो हेयर वी आर हैविंग सम फीडबैक। नाउ फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इफेक्टिव लिसनिंग ये काम में आता है ताकि सेंडर को पता चले कि उनकी कम्युनिकेशन में कहाँ कोई कमी रह गई है।
तभी वो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है। इट कैन मोटिवेट द sender also, it can improve the performance of sender and it is a tool for continued learning। अगर सब कुछ सही है तो sender अपने उस मैनर को कंटिन्यू कर सकता है। Now descriptive feedback, so it includes specific information in the form of written comments or verbal conversations that help the learner understand that he needs to do in order to improve। Descriptive feedback, अब इनका benefit क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, जब हम कोई कमेंट्स के थ्रू, कोई रिमार्क्स के थ्रू किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो ठीक है। नॉर्मली अगर हम स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग आउटकम के बारे में बताना चाहते हैं तो ये उस वक्त बहुत हेल्पफुल रहता है। ये स्टूडेंट्स को ये हेल्प कराने में यूज़फुल रहता है, उनके सेल्फ असेसमेंट को हेल्प कराने में यूज़फुल रहता है, उनके गोल्स को फिक्स करने में ये हेल्पफुल रहता है। अब होते हैं there are two more categories of feedback, specific and non-specific feedback। तो specific feedback मतलब it provides detailed information about something particular relating to task or the individual performance। ये बिल्कुल specific feedback देते हैं कि okay this was the things, हमने ये समझा या फिर आप में ये कमियां थी, आपके कम्युनिकेशन में एग्जैक्ट ये कमियां थी, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। Another one is non-specific feedback, जहाँ पे एक हम जनरल फीडबैक दे देते हैं बट ये एक थॉटफुल रिस्पॉन्स सेंडर के लिए नहीं होता है। इट इज जस्ट अ जनरल feedback which is not very much useful for sender। Another is what is the need for specific feedback। So we can say that specific feedback can be highly constructive। It will be useful for students so that they can make their self-assessment very effectively। It might prove to be beneficial to the receiver। Okay, so it may result in effective communication। Now there are some communication barriers also। What are communication barriers? ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फेल हो जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत से कम्युनिकेशन होते हैं जब मैसेज रिसीवर तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाता है जैसे सेंडर उस तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए इन सब के पीछे जो रीज़न होता है उसमें वो हमें फाइंड आउट करना होता है। इसलिए वैसे बैरियर्स जो इस कम्युनिकेशन को फेल कर रहे हैं या सक्सेसफुल नहीं होने देना चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। ओके, so there exist many barriers to communication and these may occur at any stage in communication process। ऐसे बहुत से barriers हैं और वो communication process के किसी भी stage में हो सकते हैं। So let us discuss some of the communication barriers। If your message is lengthy or complicated, if there is some linguistic issues, मतलब आप जिस लैंग्वेज में समझा रहे हो वो लैंग्वेज अगर रिसीवर को नहीं पता है, there may be inconsistent tone और non-verbal communication, अगर आपकी टोन जो है वो consistent नहीं है then there are chances of communication barrier। There are some internal barriers also like fatigue, disinterest or excitement, poor listening skills, emotional barriers, differences in perception and viewpoint, prejudices और bias, cultural differences, ये सारे हो जाते हैं हमारे इंटरनल बैरियर्स जो हमारे कम्युनिकेशन को फेल करवाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रिजुडिस और बायस, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे फॉल्स अजम्पशन कर लेते हैं। पीपल ऑफन हियर व्हाट दे एक्सपेक्ट टू हियर, हम जो सुनना चाहते हैं उसी को हम समझना चाहते हैं। तो अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन नहीं की जा रही है तो भी हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, मतलब the norms of social interaction vary greatly in different cultures, so do the way in which emotions are expressed। For example, the concept of personal space varies between cultures and different social settings। Okay, now there are external barriers like noise and other distractions। अगर शोर हो रहा हो, दूसरा अलग distraction हो तो भी हमारा communication fail हो सकता है। फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे हियरिंग प्रॉब्लम्स हो, किसी को सुनने में डिफ़िकल्टी हो, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं हमारे। अब हमें बात करनी है कि इसको हम ओवरकम कैसे करें।
तो बैरियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है। जैसे we should keep our message quite simple and we should use simple language and correct language. We must use appropriate body language. Then अगर इंटरनल बैरियर्स की हम बात करें कि इंटरनल बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो उसके लिए बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक, डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, डेवलप ट्रस्ट, कीप योर इमोशंस इन चेक, देन डू नॉट एज्यूम, हमें एजम्पशन नहीं करना है कि यही हम सामने वाला हमसे यही कहने वाला है, वी शुड नॉट एज्यूम, बी अनबायस्ड एंड फेयर, रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स सो दैट इंटरनल बैरियर्स कैन बी ओवरकम। एंड लेट अस सी हाउ वी कैन ओवरकम एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करना होगा, हमें ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना होगा। अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमें इमोजीज यूज़ करना है टेक्सटिंग जब हम यूज़ करते हैं, और फीडबैक भी हमें मांगना चाहिए ताकि हमें ये बात पता चले कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कितना सक्सेसफुल है। नाउ there are 7 C's which are very important for communication, for effective communication. 7C means the first C is meant for clear, then concise, then concrete, correct, coherent, complete, and courteous. So these are the 7 C's which are meant for effective communication. So let us discuss one by one all of them. So clear means be clear about what you want to say. ठीक है, there should be clarity which implies emphasizing on a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once. It makes understanding easier. Clear messages make use of exact, appropriate and concrete words. Second C means concise. Conciseness means communicating what you want to convey in least possible words without foregoing the other C's of communication. So जब हम बात करते हैं कंसाइज की, तो हमें सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं और जितनी ज़रूरत है उतने ही यूज़ करने हैं, सो दैट टाइम सेव हो, कॉस्ट सेव हो, और हमें मेन बातों को हाईलाइट करना चाहिए. नेक्स्ट सी इज़ अबाउट कंक्रीटनेस. कंक्रीटनेस means that being particular and clear rather than fuzzy and general. ठीक है, हमें बिल्कुल कंक्रीट रहना चाहिए अपने वर्ड्स को लेके. नेक्स्ट वन इज करेक्टनेस. करेक्टनेस मीन्स here we can say that correctness in communication implies that there are no grammatical errors in communication. The message should be exact, correct and well timed. Okay, then next one is coherent. कोहेरेंट की बात अगर हम करें तो कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक. हम जितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हों, ऐसा नहीं कि वो रिसीवर को डिस्ट्रैक्ट करें. नेक्स्ट सी इज़ फॉर कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मीन्स द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट. It should convey all facts required by the audience. Okay, the center of the message must take into consideration the receiver's mindset and convey the message accordingly. So it should include all the needed information. And the last C is for courteous. Courteous means be respectful, friendly and honest. We should not be very harsh and rude. Okay, so courtesy in message implies the message should be show the sender's expression as well as should respect the receiver. So this was all about the 7C for effective communication. Effective communication क्यों चाहिए ये हम सबको पता है. What are the benefits of effective information, effective communication, ये हम सबको पता है. So here we are having that it reduces misunderstandings and prevent us from overlooking information. It creates a comfortable environment. जब effective communication हम किसी के साथ करते हैं तो उसकी कंपनी को हम क्या करते हैं, उसकी कंपनी में हम comfortable feel करते हैं. Okay, it initiates different people to work towards a common goal. Communication effective होता है तो हम दूसरे people को भी अपने साथ involve कर सकते हैं. Effective communication skill increases our self-respect. हमारी रिस्पेक्ट खुद में बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव्स ओवरऑल रिलेशनशिप विथ ईच अदर.
Okay, so it was all about communication skill. I hope you have understood the first unit, that was communication skill. So if you find the video useful, don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.